میں تنقید کرنے والوں میں سے نہیں. پہلی بات، میں بات کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو کیوں غصہ آ رہا ہے، کوئی سخت زبان بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے. اگر آپ سے ایک سوال سادہ سا کیا جائے اور آپ اس کا اسی سادگی کے سلیقے اور تمیز سے جواب دے دیں تو کیا پہلا شخص آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے. لیکن دراصل جو منشا ہے اس معاشرے کے طاقتور حصے کا وہ یہ ہے کہ غصہ دلایا جائے. غصہ دلائے. غصے میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ آپ کی دلیل گم ہو جاتی ہے اور پھر غصہ رہ جاتا ہے کسی طرف بھی. تو میں پیغام نہیں دینا چاہتی مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی معاشرہ اس طرح سے جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، خاص طور پر مردوں کا ایک خاص حصہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آئیے لفظ بدل لیتے ہیں. لیکن وہ آپ کے کوئی بھی لفظ ہوں گے یہ بھی میں جانتی ہوں، وہ ان کی تشریح اپنی مرضی سے کریں گے، اس کے معنی وہ نکالیں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنی ہے. اب ایک بہت خفا ہے نا وہ آپ کے لوگ کہ میرا جسم میری مرضی کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. مجھے معاف کیجیے گا میں نے یہ لفظ دہرائے. میں نے مان لیا کہ آپ کو ہماری تہذیب میں بہت ساری چیزوں کو برملا سامنے نہیں کہتے. اس کی مثال میں یہ دیتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میری جو نئی نسل ہے وہ ہر بات پہ SHIT کہتی ہے. میری تہذیب میں یہ ناشائستہ لفظ ہے. اگر میں اسے اردو میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ عارفہ سیدہ بری زبان بولتی ہیں، لیکن ہم انگریزی میں بولے جاتے ایک لفظ جو غصہ یا آپ کی کسی بات پر الجھن یا ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو SHIT موجود ہے. اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت غلیظ چیز کا نام انگریزی میں لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے یہ معنی بدل رہے. تو جو بڑی بری بات آپ سے کہنے جا رہی ہوں کہ اس چند لفظوں سے، بلکہ 4 لفظوں سے آپ خفا ہیں. اگر میں تھوڑی دیر پہ مان لوں کہ آپ بجا ہیں تو میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ مدرسوں میں مسجدوں میں جو معصوم بچے اور بچیاں انتہائی کم عمری میں اس تجربے سے گزارے جاتے ہیں جو ان کے ذہن، ان کے احساس اور ان کی باہر کی زندگی پر حد سے سوا اثر کرتا ہے، وہاں کس کا جسم ہوتا ہے، وہاں کس کی مرضی ہوتی ہے. بات صرف طاقت کی ہے. جس کو آپ گرفت میں لے آئیں وہ برا ہوگا. بالکل آپ اس کی بات کو سمجھ جائیے کہ دنیا بھر میں ایک وقت میں غلامی رہی ہے، تو آج بھی غلامی کی ذہنیت موجود ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دوسرے کی عزت وہ کر سکتا ہے جو خود اپنی عزت کرتا ہو. دوسرے کی آزادی کو وہ مان سکتا ہے جو خود کہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر آزاد. دوسرے کی ترقی کو وہ مان سکتا ہے جو خود ترقی کرنے کے لیے سفر پر آمادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو اپنی جگہ بیٹھی رہوں اور آپ سے کہوں کہ آپ ترقی کر لیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا. تو میم یہ جیسے بہت انقلابی خیالات ہیں کچھ لوگوں کے لیے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ وہ گفتگو ہے جس کا وقت آ گیا ہے اور کرنے کی بھی بے حد ضرورت ہے. لیکن اس کنورزیشن کو لے کے اور ان آئیڈیاز کو لے کے ہم ایک سوشل کنسنسس، ایک انفارمڈ کنسنسس کیسے بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، جس میں جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ کافی لوگوں کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، اور تعلیم جن کے پاس ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے یا ایک نالج کا ان کے اندر دے ڈونٹ ہیو سینس آف اٹ. تو پھر ایسے معاشرے کو لے کر کیسے ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، خواتین خاص کر کے کیسے پروگریس کر سکیں گی؟ بات ساری یہ ہے کہ آپ کے معاشرے سے 2 چیزیں ختم ہو گئیں اور میں کہتے کہتے مر جاؤں گی. ایک چیز برداشت،
और दूसरी चीज मुकालमा है। हम एक तरफा गुफ्तगू करते हैं, एक तरफा गुफ्तगू नहीं होती, एक तरफा नहीं होती। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं और मुझे इजाजत दे रही हैं कि मैं उसका जवाब दे सकूं, और जब मैं अपनी बात खत्म कर लेती हूँ तब आप अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो ये आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मुझे लगता है कि सच के करीब बात है, उसको कह सकूं। लेकिन अगर आप मुझे ये मौका नहीं देंगी तो मैं वो कभी नहीं कह पाऊंगी जो मेरे दिल में है, जो मैं समझती हूँ। और एक बात और, हम सबको दुनिया मुख्तलिफ नजर आती है, किसी को एक सी नजर नहीं आती। उस इख्तिलाफ को भी सामने रखिए। औरत और मर्द के नुक्ते नजर में बहुत बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। एक फर्द से दूसरे फर्द में होता है तो एक सिनफ से दूसरी सिनफ में होना चाहिए। औरत के अंदर सब्र रख दिया गया, तभी वो बच्चे पैदा कर सकती है। उस तकलीफ से, उस वजन को खुशी से उठा के अपनी जिंदगी के बेशकीमत 9 महीने मोहब्बत से देती है। और सवाल अब आप देखिए कि उसमें हमारे यहाँ क्या है कि बेटा होगा तो काबिल कबूल, बेटी हुई तो औरत उसकी जिम्मेदार। कैसी बातें करते हैं ये! बिल्कुल वैसी बातें जैसे हमारे यहाँ लोग पोलियो वर्कर्स को कत्ल किया है अभी पिछले दिनों, 8 पोलियो वर्कर्स को पाकिस्तान में, और कहते ये हैं कि ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ लड़के ना पैदा हों। भला बताइए, पोलियो से बच जाने में आबादी पर इख्तियार कहाँ से आ गया? अच्छा, जब लोग खुद, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इतनी अक्ल से परे अनहोनी बातें सोचेंगे, तो जब वो माशरे में एक दूसरे से मिलें जुलेंगे तो वो कहीं से अक्ल और होश की बात करने लगेंगे। बर्दाश्त सिर्फ औरत को नहीं चाहिए, बर्दाश्त पूरे माशरे को चाहिए। मैं और आप जानते हैं कि आप ये समझते हो कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, और उसके सही होने के लिए मेरे पास हवाले मौजूद हैं, दलील मौजूद है, मगर जो सुनना नहीं चाहते वो सुनेंगे नहीं। तरक्की होगी, हुई है, हो रही है। मैं मायूस नहीं हूं। मैं तो आधा गिलास खाली देखने से जिंदगी भर मैंने इनकार किया। औरतों ने, देखिए, उनकी मर्जी की जद्दोजहद में हम शामिल हो जाएं तो हम अच्छे हैं। तहरीक पाकिस्तान में औरतें शामिल थी या नहीं थी? अभी भी जब कभी हम किसी से खफा होते हैं और जुलूस निकलता है तो उसमें औरतें होती हैं या नहीं होती? अभी भी हम जिससे खुश होते हैं और उसको खुशामदीद कहने के लिए जो जुलूस निकलता है उसमें भी औरतें होती हैं या नहीं होती? तो जहां वो चाहे वहां औरत हो तो सही है। तो मेरी जिंदगी के सारे फैसले कैसे मुमकिन है कि कोई और करता रहे? जरूरत है मुकालमे की। मुझसे बात कीजिए, मुझे बेजान या जानवर समझ की बात मत कीजिए। खुदा की मखलूक मैं भी हूँ। सजा और जजा का तस्वुर वही है जो मर्दों के लिए है, वो मेरे लिए। मेरा गलत भी गलत और मेरा सही भी सही। लेकिन उन्होंने अपने जिम्मे ये काम लगा लिया है कि असल में तो मखलूक वो हैं और बाकी हम सब कहीं कोई निचला दर्जा रखते हैं। नहीं, ये बात इंसाफ की नहीं। परवरदिगार ने कुरान में कहा कि हमने बनी आदम को तकरीम के साथ पैदा किया है। तो जो जिस बनी आदम की इज्जत खुदा जिसकी गवाही दे रहा है, आप उसे अगर अपनी तहजीब के सांचे में बहुत सी बातों को शरीक नहीं करते तो कोई बात नहीं। आज औरत सिगरेट पीती है तो आप खफा हैं। 50-60 बरस पहले हमारी नानी दादियां हुक्का पीती थी, कोई उनसे खफा नहीं था। क्या गांव में, क्या शहर। तो मतलब ये था कि उस वक्त वो बर्दाश्त करते थे कि ठीक है, अगर हमारा धुआं उड़ाने को जी चाहता है तो इसका भी जी चाह सकता है। ये कोई एक ऐसी, और उस वक्त कभी कहीं आपने कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी तहरीर पढ़ी है कि हुक्का पीती है इसलिए बुरी है, मगर सिगरेट पीती है तो बुरी है? ये आप, सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं। मैं अपनी
उन बहनों से भी बहुत और उन साथियों से माजरत के साथ कहती हूँ कि अगर मर्द सिगरेट पिए तो नुकसानदेह है, और औरतें ये सारे नुकसान हम भी खुद को पहुंचा सकते हैं। नहीं, आपको थोड़ा सा अगर वो जज्बाती तौर पर हमारे साथ सलूक कर रहे हैं तो हमें उस जज्बात का जवाब जज्बाती नहीं देना चाहिए, सोच समझ के, दलील से, बेहतरी के लिए। और अभी भी मैं समझती हूँ कि जो पूरे माशरे में अगर कोई तरबियत कर सकता है तो औरत कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक बर्दाश्त है, वो ठहर सकती है, सोच सकती है। और हमारे यहाँ बहुत सी औरतें सिर्फ मेरा ख्याल है मर्दों को खुश करने के लिए वो बातें कर रही हैं जिनका दलील से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने का हक दे दो, हमें फैसला करने का हक दे दो, हमारे इख्तियार, जो हमारी जिंदगी है, हमें हमारी पसंद का इजहार कर लेने दो। नहीं, आपने देखा है कि बीवियां उन रंगों के कपड़े पहनती हैं जो उनके शौहरों को पसंद होते हैं। घर में वो खाना पकता है जिसमें कि जो उस घर का खाना है। लड़कियां वो खाना भूल जाती हैं जो अपने मैके से खा के आ रही होती। ये छोटी छोटी बातें हमने बड़ी बड़ी कर दी। बड़ी बात ये थी कि हम देखते कि क्या इस मुल्क में तालीम है, क्या यहाँ इंसान को इंसानी हक की तरह इंसाफ मिलता है। देखिए, नूर मुकद्दम का जो कत्ल है वो एक हमारे लिए इतनी बड़ी इबरत की जगह है। ये जब फैसला आया है तो सबसे ज्यादा मायूस मर्द हुए, और उससे पहले कितनी बातें थी जो आप उसको देख सकते थे। सवाल जिंदगी का नहीं है, सवाल जिंदगी की तकरीम का है, जिंदगी की इज्जत का है। आप किसी जानदार को इतनी आसानी से आज़ार नहीं पहुंचाते तो एक इंसान को कैसे पहुंचा सकते। अगर आप इंसान हैं तो दूसरी सिनफ को भी इंसान जान लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। और गलती हाँ। सब कर सकते हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ कि गलती की कोई सिनफ नहीं है, ज्यादती की कोई सिनफ नहीं है, कोई भी कर सकता है, इंसान है। लेकिन बेहतरी भी की भी कोई एक ही सिनफ नहीं है कि एक सिर्फ हुक्म दे और दूसरा सिर्फ हुक्म माने। तो ये तो मुतवाज़न माशरा नहीं, और जो माशरा मुतवाज़न नहीं उसमें जो तरक्की होगी उसमें भी कोई तवाज़ुन नहीं होगा। ठीक। जैसे आपने अभी उस फैसले की बात की, मेरा कंक्लूडिंग सवाल भी आपसे इसी चीज़ को लेकर है कि हमारे माशरे में जब कोई जुर्म हो जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसे प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करें। हम पहले ही उस चीज़ को होने ही ना दें, रोकने से नहीं बल्कि लोगों में शऊर उजागर कर कर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। तो इस सोच के साथ सिमिलरली हमारी यही मेथोडोलॉजी है जब हम मज़हब को इस्तेमाल करते हैं ऐसे समाजी मूवमेंट्स को रोकने के लिए जो हमारी सोसाइटी को बेहतर कर रही होती हैं। जैसे ख़वातीन के हकूक़ की मूवमेंट है, इसमें मज़हब का रोल शुड बी समथिंग जो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सके, इस गुफ्तगू को ज़्यादा मुयस्सर कर सके लोगों के लिए। हम हमेशा उसको उसके ऑपोजिट इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत अगर बहुत अच्छी बात की। मज़हब को और हमारे मुआशरे को, इन सब को साथ लेके जो फेमिनिज्म की, जो हक की बात करने लोग बाहर निकले, इन सबको एक टेबल पे रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान बात है। दीन चंद आदतों का, सिर्फ चंद इबादतों का, सिर्फ चंद तहजीबी रस्मों को संभालने का नाम नहीं है। दीन उसूल है, तो आप दीन का उसूल अपनाइए। दीन का उसूल है अदल, इंसाफ। दीन का उसूल है दूसरे की इज्जत। दीन का उसूल है हर एक का हक उस तक पहुंचा देना। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी हक तलफी है लड़कियों की, अगर वसाइल कम है तो लड़के तालीम हासिल करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। और जिनके पास बहुत वसाइल हैं तो तरके में लड़कियों को नहीं, बाप के वर्से में लड़कियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहनें तो भाइयों पर जान चिड़कती।
कुछ हरज है अगर भाई भी बहनों पे जान छिड़कने लगे, और जान न भी छिड़कें तो थोड़ा सा इंसाफ करने लगे कि जो उसका हक है वो उसको दे दें। इसमें मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आप बहुत ताकतवर लोग हैं माशाल्लाह से, तमाम मर्द हजरात। तो जो इंसाफ है, जो हक है, जो जिंदगी की दीन, फिर मैं दोहराती हूँ, दीन उसूलों का नाम है, और दीनी जिंदगी उन उसूलों पर जिंदा रहने का नाम है। दीनी जिंदगी सिर्फ आप देखिए 72 फिरके अपनी अपनी बात करते हैं, इस्लाम एक ही बात करता है। हर इंसान की हुर्मत है, हर जिंदगी की तकरीम है, हर नाम की एक इज्जत है, हर काम की एक इज्जत है। जो उसके जिम्मे है वो अपना काम करे। तो कहीं आपने अगर कभी भी, आज आपकी औरतें माशाल्लाह से 75 बरस होने को आए, बहुत औरतें आगे बढ़ी हैं, बहुत हिम्मत की है, बहुत दुख उठाया है, बहुत सख्ती सही है। जिस सिनफ के साथ ये उसूल होता हो कि वो दस्तरखान पर अपनी पसंद का सालन या सालन में से अपनी पसंद की बोटी नहीं खा सकती, क्योंकि वो या अब्बा या भाई के लिए होती है। ये कहाँ से हमने तबकाती निज़ाम इस्लाम के साथ वाबस्ता कर दिया। इस्लाम से ज़्यादा तो मसावात का, एक्विटी का कोई कायल नहीं है। मैं इक्वालिटी से ज़्यादा एक्विटी की बात करती हूँ। ये अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल किए। हम एक जैसा नहीं होना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे जो हम हैं हमें वैसा हक दे दिया जाए, जो हमारे फ़र्ज़ हैं हमसे सिर्फ उन फ़राइज़ की तवक्को की जाए, और लफ्ज़ों से खफा होने की बजाय लोगों को उसूल समझाइए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही बात की, हमें असूलों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा असूल समझ आएगा, मैसेज का जिस्ट समझ आएगा, तभी हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। ये लिख के रखिए। बिल्कुल दर्ज बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वक्त मुझे दिया। आपके साथ पूरे दिन भी गुफ्तगू हो तो आई थिंक वो भी वक्त कम है। आई कैन लिसन टू यू ऑल डे। कोई इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी अहम नुक्तों पे हमने बात की जो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन इन सवालों को लेकर बहुत कंफ्यूज है, बहुत कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं हम जब इन पे सोचना शुरू करते हैं। फिर दोहराऊंगी अपनी बात आपके लिए और आपकी नस्ल के लिए। मैं तो आप सबका माजी हूँ, आप मेरा मुस्तकबिल हैं, और मैं अपने मुस्तकबिल को अपने माजी जैसा नहीं देखना चाहती, उसे बहुत बेहतर होना है। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो आप लोगों को बदलना है। लफ्ज़ खुद कुछ नहीं होते, लफ्ज़ वो होते हैं जो मानी उससे पैदा किए जाते हैं, और मानी पैदा करने के लिए मुकालमा कीजिए, दूसरे की बात तो सुन लीजिए, उसे कहने तो दीजिए। हो सकता है कि आखिर में आप दोनों एक जगह आके खड़े हो जाएं। वो जो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से इख्तिलाफ इसलिए करते हैं कि हम इत्तफाक कर सकें। बात का समझना ज़रूरी है। जब बात समझी नहीं जाएगी तो गलत फहमियाँ हमेशा गुस्से को जन्म देती। बिल्कुल सही बात। इसी पॉइंट पे हम इसको एंड करेंगे, इसी गुफ्तगू को समेटेंगे अब कि मुकालमे की जगह बने, और इन्हीं चीज़ों को रखते हुए सामने मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।